بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس، چوتھی صلیبی جنگ کی المناک داستان، ایپیسوڈ نمبر 14۔ میں ان علاقوں کی طرف کیا کرنے آیا ہوں یہ میں تم لوگوں کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پہلے تم لوگ مجھے اس جھوپڑے میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے۔ میں سمجھتا ہوں ارجن تم دونوں کے لیے کھانا لے کر آئی ہوگی اور میں تم تینوں کے ساتھ کھانے میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھ قدغان، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں کئی روز اس سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ارجن تم دونوں کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ اگر میں نے نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو تم دونوں کی غیر موجودگی میں یہ گھر پر اکیلی ہوا کرتی تھی۔ میں اس کا خاتمہ کر سکتا تھا اور تم دونوں کا یہاں جھوپڑے میں آ کر کام تمام کر سکتا تھا۔ کوئی مجھے روکنے والا، میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، لیکن میں نے کام نہیں کیا اس لیے کہ میں اس کام پر نکلا ہوا ہی نہیں ہوں۔ قدغان کے بجائے اس بار امیس بن خزن بول پڑا۔ برغوث، اگر تو قدغان، ارجن اور میرے در پہ نہیں ہے تو پھر تو میرے بیٹے کی مانند ہے۔ تو یہاں اس جھوپڑے میں بیٹھ، ہمارے ساتھ کھانا کھا اور جو کچھ تو ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ تفصیل کے ساتھ بتا۔ برغوث آگے بڑھا، ہاتھ میں پکڑا ہوا چمڑے کا بڑا تھیلا اس نے ایک طرف رکھ دیا، پھر اسی چمڑے کے تھیلے کی ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ پھر بولا، قدغان اور ارجن، میری بہن اور میرے بھائی، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں میری بات غور سے سنو۔ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد تم مجھ پر اعتبار اور بھروسہ کرو گے۔ سن میرے بھائی اور بہن، مسکن سے مجھے اور دیگر دو فدائیوں کو، ایک بہت بڑے عالم دین کے علاوہ ایک تاجر کو اس وقت قتل کرنے کا حکم ملا تھا جب وہ نقدی کی ایک بھاری رقم ایک شہر سے دوسری شہر منتقل کرا رہے تھے، اور وہ نقدی اس سے لوٹ کر اور اس تاجر کا قتل کر کے ہمیں مسکن میں پہنچانی تھی۔ میں تم سے خدا کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں مسکین کی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں بڑے بھیانک طریقے سے بہت سے لوگوں کو مسکین کے مخالف سمجھتے ہوئے زندگی سے محروم کیا۔ اس وقت میرا ضمیر مردہ تھا اور میں ہر برا فعل کرنے پر تل جاتا تھا۔ پھر ایسا لگا جیسا میرا ضمیر بیدار ہو گیا ہو، اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب مجھے موجودہ تاجر اور عالم دین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس عالم دین کو قتل کرنے کا مجھے حکم ملا تھا وہ بڑا صاحب علم اور اسلامی دنیا میں بڑا ہر دل عزیز ہے۔ میں کسی بھی صورت اسے قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، اور جس تاجر کو قتل کرنے کا حکم ملا تھا میں اسے بھی موت کی گھاٹ اتارنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ عالم اسلام کی اپنی تجارت کے مال کے ذریعے خدمت کرنے والا تھا۔ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ پہلے میں نے تاجر کا رخ کیا۔ عالم دین کو میں نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا، اس لیے کہ میں ایک بہت بڑا قدم اٹھا چکا تھا۔ جس وقت ہم اس تاجر کو قتل کرنے کے لیے پہنچے تو تاجر پر حملہ ور ہونے کے بجائے میں نے اچانک اپنے دو ساتھی فدائیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد میں نے اس تاجر کو پورے حالات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے کہ کس طرح ہم تین فدائی اسے قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن چونکہ میں اب اس کام سے بیزار ہو چکا اور کسی کی جان نہیں لینا چاہتا، لہٰذا اسے قتل کرنے کے بجائے میں نے اپنے ساتھیوں کا کام تمام کر دیا۔ وہ تاجر بڑا نیک بخت آور ہے۔ جب اس نے یہ حالت سنی اور اسے یہ احساس ہوا کہ اب وہ میری وجہ سے فدائیوں کے ہاتھوں سے محفوظ ہے، تب وہ بڑا خوش ہوا۔ اس کے پاس جس قدر نقدی تھی اسے اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس بڑے چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر میرے حوالے کیا، دوسرا اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے ہر چند یہ نقدی لینے سے انکار کیا، لیکن اس نے زبردستی مجھے نقدی تھمائی اور خود اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ میں یہ نقدی لے کر روانہ ہوا اور اس سرائے میں آ کر قیام کیا۔ دیکھو میرے بھائی، میری بہن، اب میں مسکین میں واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں عالم اسلام کی خدمت کرنے کا ایک بہت بڑا عہد کر چکا ہوں۔ برغوث جب خاموش ہوا تو قدغان نے پوچھ لیا، برغوث، جو کچھ تم نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر میں اور ارجن دونوں میاں بیوی تم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، پر یہ تو کہو تم عالم اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھانا چاہتے ہو؟ برغوث نے بغیر کسی توقف کے پھر کہنا شروع کیا، قدغان، میں نے زندگی میں جیسا کہ بتا چکا ہوں بہت لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے مسکین کے کہنے پر کیا۔ یوں جانو زندگی میں بے شمار گناہ اور بدیوں میں اپنے آپ کو ملوث کیا۔ اب ضمیر کی بیدار ہونے کے بعد میں اپنے ان سارے گناہوں اور بدیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، اور اس تلافی کے لیے میں نے ایک راہ بھی تلاش کر لی ہے، لیکن اس کی تفصیل فی الحال میں تم لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ بس اتنا ہی میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کو اس وقت دو قوتوں سے بڑا خطرہ ہے۔ ایک فرانس کا بادشاہ لوئی نہون جس نے افریقہ پر حملہ کر دیا ہے، اور اس کے متعلق میں نے سنا کہ مصر کا بادشاہ رکن الدین اس کی سرگوبی کے لیے قاہرہ سے تیونس کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ دوسرا خطرہ جو عالم اسلام کو پیش آنے والا ہے وہ انگلستان کے شہزادے ایڈوب کی طرف سے ہے، جو عنقریب انگلستان سے روانہ ہو کر ارض مقدس کی طرف رخ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کچھ سلیلوں سے سنا کہ شہزادے ایڈوب ایک بہت بڑے اور جرار لشکر کے ساتھ عکا کی بندرگاہ پر آ کر لنگر انداز ہو گیا۔
बस जिस वक्त इंग्लिस्तान का शहजादा इडुट यहाँ पहुंचेगा उस वक्त ही मैं अपने काम की इब्तिदा करूंगा, इसलिए कि मिस्किन की तरफ से इडुट के नाम मेरे पास एक खत है। उस खत को मैं काम में लाऊंगा। कैसे लाऊंगा इसकी खबर तुम लोगों को इडुट के पहुंचने के बाद जरूर किसी न किसी तरीके से हो जाएगी। यहाँ तक कहने के बाद बरगुस चंद सानियों तक खामोश रहा, कुछ सोचता रहा। फिर उसने चमड़े की वो बड़ी खिरचीन जिसने उसने लटका रखी थी थामी अपने सामने रखा। उसमें चमड़े की छोटी सी थैली जो नकदी से भरी हुई थी वो निकाल कर उसने अपने कमर के मुनकते से बांध ली। फिर वो बड़े चमड़े की खिरचीन उसने अमीस, कदगान और अर्जुन के सामने रख दी। इस चरमी खिरचीन को देखो, ये नकदी से भरा हुआ है। इसमें छोटी छोटी थैलियां हैं जो सब नकदी से भरी हुई है। मैंने एक छोटी थैली रख ली, ये मेरे लिए काफी है। बाकी नकदी की सारी थैलियां तुम लोगों के हवाले करता हूँ। चाहो तो सारी रख कर अपने काम में लाओ, चाहो तो इसमें से कुछ अपने पास रखो, कुछ अमीर तुनिताई के हवाले कर दो। इसलिए कि सिराम क़याम के दौरान मुझे खबर मिली थी कि तुनिताई के तुम्हारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो तुम्हें भाई बहन समझता है और तुम दोनों उसे अपना भाई ख्याल करते हो। और अमीस बिन खजरुन ने भी उसे अपना बेटा बना रखा है। वो आलम इस्लाम का एक ऐसा मुजाहिद है जिसने बहुत अच्छे काम किए हैं। उसने उन लोगों को कत्ल किया जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताबचे लिखते थे। कसम खुदावंद कुद्दूस और मेहरबान की, ये एक ऐसा काम है जिसका कोई मुआवजा, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बरगुस जब खामोश हुआ तो अर्जुन ने पहली बार चौंकने के अंदाज में कहना शुरू किया, बरगुस मेरे भाई, हम इतनी बड़ी रकम रखकर क्या करेंगे? इसमें से तुम कुछ और ले लो जो तुम्हारे काम आएगी। बरगुस ने बड़ी नरमी और बड़ी शफकत अमेज आवाज में जवाब देना शुरू किया, अर्जुन मेरी बहन, मैं इतनी बड़ी रकम रखकर क्या करूंगा? मैं जिस काम के लिए निकला हूँ उसके लिए मेरे पास काफी रकम है। इसमें से एक थैली मैंने अपने लिए निकाल ली है, बाकी अब तुम तीनों की मिल्कियत है। इसे जिस तरह चाहो खर्च करो और अपने काम में लाओ। क्या ऐसा मुमकिन है कि अब हम इस मौजू पर गुफ्तगू बंद करें और खाना खाना शुरू कर दें? मैंने आज सुबह ही से तैयार कर रखा था कि आज का खाना मैं तुम तीनों के साथ इस झोपड़े में खाऊंगा। खुदावंद मेहरबान, खुदावंद करीम का बड़ा शुक्र है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ हूँ। तुम तीनों मुझ पर एतमाद और भरोसा भी करने लगे हो और मुझे खाने की पेशकश भी कर रहे हो। बरगुस की इस गुफ्तगू पर अमीस, कदगान और अर्जुन तीनों मुतमईन और खुश हो गए थे। फिर अर्जुन ने सबके सामने खाना रखा और चारों मिलकर खुशगवार माहौल में खाना खाने लगे थे। खाने के बाद बरगुस उठ खड़ा हुआ और फिर किसी कदर गमजदा से आवाज में कहने लगा, मेरी दोनों बहन भाइयों और अमीस बिन खजरुन, अब तुम तीनों अपने अपने काम में लग जाओ, मैं तुम्हारे पास से रुखसत होता हूँ। बरगुस की इस गुफ्तगू पर कदगान तड़प कर रह गया और पूछा, बरगुस, अब जबकि तुम मुझे भाई और अर्जुन को बहन और अमीस बिन खजरुन को अम कह चुके हो, तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि अब हमारा इत्मीनान हासिल करने के बाद तुम कहाँ जाना चाहोगे? ऐसा मुमकिन है कि तुम हमारे ही पास रहो और पुरसुकून जिंदगी बसर करो। इस तरह हम अमीस के पास रहकर तीनों खुशगवार जिंदगी भी बसर कर सकेंगे और अपनी हिफाजत भी कर सकेंगे। और मैं सूसा नाम की इस बस्ती में तुम्हारे लिए कोई मुनासिब लड़की तलाश करके तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। कदगान की इस गुफ्तगू के जवाब में थोड़ी देर के लिए बरगुस के लबों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट फैली रही। फिर वो बेहद संजीदा हो गया, साथ ही झोपड़े में उसकी आवाज बुलंद हुई, कदगान मेरे भाई, ऐसा मुमकिन नहीं। यूं जानो कि मैं माशरे की वो उकाई हूँ जिसके जहन ही उसके लिए तोक बन जाता है और चारों तरफ मौत की सीटियां बजने लगती है। मैं वो बदबख्त इंसान हूँ जो शाम में मस्तान की थरथराहट मौसमों की नमी से बचने के लिए अपने हाथ गर्म करता है। मैं उस मसाफत आशना का मुसाफिर हूँ जिसका कोई हम नशीन, कोई जान का दुश्मन, कोई रोशनी, कोई इशारा नहीं। मैं एक ही नाम के मुख्तलिफ जायके रखने वाली बदी के वो तशहीर हूँ जो हमेशा हसीन और जमाल, तजलील, आलम इस्लाम की तहकीर, उलमा के कत्ल व इखलाक और किरदार की पस्ती और फूल से चेहरों पर अजियत की खटन ही का बाइस बनी। कदवान मेरे भाई, इसमें शक नहीं कि मैं किसी सुनसान रास्ते पर पड़ा हुआ हूँ। फिर कदगान ने कहा, बरगुस मेरे भाई, तुम्हारी इस गुफ्तगू ने मुझे उदास, परेशान और फिक्रमंद कर दिया है। अब तुम यहाँ से निकलकर कहाँ जाओगे? मुझे अंदेशा है कि तुम जबले शेख की दूसरी फिदाइयों के हत्थे ना चढ़ जाओ, और अगर उन्हें ये इल्म होगा कि तुमने अपने दो साथियों को कत्ल करके अपनी जिंदगी तब्दील कर ली है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर बरगुस ने हल्का सा कहा लगाया, जबले शेख की फिदाई मुझसे इंतकाम तो उस वक्त लेंगे जब मैं उनके हाथ लगूंगा। मैं जिंदगी का धारा बदल चुका हूँ। मैं अक्का शहर का रुख कर रहा हूँ जहाँ चंद दिन बाद इंग्लिस्तान का शहजादा इडुट अपने लश्कर के साथ पड़ाव करेगा। फिर देखना मैं अपनी जिंदगी के माजी गुनाहों को कैसे धोता हूँ, कैसे अपने लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार का रास्ता तलाश करता हूँ और माजी में किए गए गुनाहों की कैसी तलाफी करता हूँ। देख कदगान, मेरे 400 हस्त हैं, तुम देखोगे कि बहुत जल्द वो बूढ़ होने वाले हैं। मैं सरलूट दिल की एक नई इबारत रकम करने का तहिया कर चुका हूँ। यहाँ तक कहते कहते बरगुस खामोश होगा, इसलिए कि सराय का एक लड़का सियाह रंग के एक घोड़े की बाग पकड़े सिराय से निकलकर उस झोपड़े से बाहर आ खड़ा हुआ था
उस पर बरगूस झोपड़े से बाहर निकला और उस लड़के से सियाह रंग के घोड़े की बात उसने पकड़ ली थी। लिबास में हाथ डालकर चंद सिक्के निकाले और उस लड़के को थमाते हुए कहा, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तेरा बहुत शुक्रिया कि तू मेरे घोड़े पर जेन डालकर अस्तबल से यहाँ लाया। ये सिक्के रख तेरे काम आएंगे। अब तू जा, सिराय में अपने काम में लग जा। उसके साथ वो लड़का मुड़ा और सिराय में चला गया था। बरगूस ने एक अंगेज कर देने वाली जुस्त लगाई और अपने घोड़े पर सवार हुआ। इतनी देर तक कदगान, अमीज बिन खजरुन और उर्जुन भी झोपड़े से बाहर निकलकर खड़े हो गए थे। बरगूस ने अपना हाथ फिजा में लहराया। अच्छा मेरे अजीजों, मेरे मेहरबानों, मैं अब तुमसे रुखसत होता हूँ। अनकरीब तुम लोग मेरे मुतालिक एक अच्छी खबर सुनोगे। इसके साथ ही बरगूस ने उस सियाह रंग के घोड़े की बात मोड़ी, उस येर लगाया और सर पर दौड़ाता हुआ उन तीनों की निगाहों से उछल हो गया था। सुल्तान रुकनुद्दीन और तुर्निताई अपने लश्कर के साथ अफ्रीका के बेकिनार सहराओं में सफर करते हुए अभी ट्यूनिस की बंदरगाह से लगभग 20 मील दूर थे कि सहरा के अंदर उन्हें अपने सामने रेत के हयूले उड़ते हुए दिखाई दी। ये समा देखते ही सुल्तान ने अपने लश्कर को रोक दिया। थोड़ी देर बाद रेत के उन बादलों से 4 घुड़सवार नमूदार हुए। वो अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए सुल्तान के लश्कर की तरफ आ रहे थे। जब वो करीब आए तो सुल्तान ने उन्हें पहचान लिया। वो उसके जासूस थे। मजीद सुल्तान के नजदीक होकर जब वो अपने घोड़ों से नीचे उतरने लगे तो इशारे से सुल्तान ने उन्हें अपने घोड़ों पर बैठे रहने और मजीद करीब आने के लिए कहा, जिस पर वो अपने घोड़ों को आगे बढ़ाते हुए सुल्तान और तुर्निताई के करीब आकर रुके। फिर सुल्तान ने उन चारों को मुखातिब किया, मेरे अजीजों, मेरे मेहरबानों, कहो क्या तुम मेरे लिए कोई अच्छी खबर रखते हो? इस पर एक जासूस बोल पड़ा, सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक हम फ्रांसीसी लश्कर की नकल और हरकत और उनके सारे महलों उर्कू से मुतालिक खबरें हासिल करने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सुल्तान, फ्रांसीसियों ने जिस बहरी बेड़े में फ्रांस से अफ्रीका तक सफर किया था वो बहरी बेड़ा ट्यूनिस की बंदरगाह पर खड़ा है। उस बहरी बेड़े के जरिए बहुत बड़ा और जर्रार फ्रांसीसी लश्कर अफ्रीका के साहिल पर उतरा है। फ्रांस का बादशाह लवी नहोम बनफ से नफीस उस लश्कर में शामिल है और उसने अफ्रीका के साहिल से 8वीं सलीबी जंग की इब्तिदा कर दी है। सुल्तान, इन इलाकों में बनो मरीन की हुकूमत कायम हुए सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। इसके बावजूद बनी मरीन बड़ी तेजी और जल्दी में एक लश्कर तैयार करके फ्रांसीसियों के मुकाबले पर लाए। ट्यूनिस के साहिल पर बनो मरीन और फ्रांसीसियों के दरमियान हौलनाक जंग हुई, लेकिन उस जंग में फ्रांसीसी गालिब रहे और मुसलमानों का जो लश्कर उनके मुकाबले पे आया उसके अक्सर हिस्से को फ्रांसीसियों ने तहे तेग कर दिया। सुल्तान मोहतरम, उस जंग से पहले ही बनो मरीन ने अपने कासिद मदद के लिए मिस्र रवाना किए थे, लेकिन बनो मरीन और उसके इलाके की बदकिस्मती के उन दिनों आप आर्मीनिया में हालात दुरुस्त करने में मसरूफ थे। अब हालात ये हैं कि बनो मरीन का लश्कर जो कत्ल होने से बच गया था वो सहराओं में रूपोश हो चुका है और अपने साथ उन्होंने कुछ और मुस्लिम जवानों को भी मिलाकर फिर एक जमीयत तैयार कर ली है और वो गाहे गाहे फ्रांसीसियों पर शब खुद मारकर उन्हें परकंदा करने की कोशिश में मसरूफ है। अब बनो मरीन कोई बाकायदा और मुनज़्ज़म लश्कर लेकर फ्रांसीसियों के सामने आने की हालत में नहीं है। जब वो मुखबिर यहाँ तक कहने के बाद खामोश हुआ तो सुल्तान रुकनुद्दीन थोड़ी देर तक गर्दन झुकाकर कुछ सोचता रहा। फिर दोबारा उसने मुखबिर की तरफ देखा, मुझे ये बताओ कि फ्रांस का बादशाह लवी नहोम इस वक्त कहाँ है? जवाब में मुखबिर फिर बोल पड़ा, सुल्तान, बनो मरीन के लश्कर को जब शिकस्त हुई और उन्होंने एक जमीयत तरबियत देकर फ्रांसीसियों पर शबखुन मारने का सिलसिला शुरू किया, तब फ्रांस के बादशाह लवी नहोम ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। लश्कर का आधा हिस्सा उस वक्त ट्यूनिस की बंदरगाह में अपनी बहरी बेड़े की हिफाजत पर मामूर है। लश्कर का दूसरा आधा हिस्सा सहरा के अंदर बनो मरीन के लश्करों की तलाश में है जो फ्रांसीसियों से छापामार जंग की इब्तिदा कर चुके हैं। इस खबर पर सुल्तान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने फिर पूछा, क्या तुम ये भी बता सकते हो कि लवी नहोम अपने लश्कर के किस हिस्से में है और ये कि फ्रांसीसी लश्कर का वो हिस्सा जो सहरा के अंदर बनो मरीन के छापामारों की तलाश में है वो ट्यूनिस की बंदरगाह से अंदाजन कितनी दूर होगा? सुल्तान के इस सवाल पर उस मुखबिर ने थोड़ी देर चुप रहकर कुछ सोचा, फिर जवाब देना शुरू किया। सुल्तान, खुद फ्रांस का बादशाह लवी नहोम अपने लश्कर के शुमाली हिस्से में है जो बनो मरीन के छापामारों की तलाश में है और छापामारों को तलाश करने वाला ये फ्रांसीसी लश्कर मेरे ख्याल में इस वक्त ट्यूनिस की बंदरगाह से कोई 20 से 25 मील दूर सहरा के अंदर अपनी कार्रवाई में मसरूफ है और लवी नहोम ने अपने लश्कर के कुछ दस्ते ऐसे भी मुकर्रर किए हुए हैं जो रसद और कमक के लिए न सिर्फ ट्यूनिस की बंदरगाह से राब्ता कायम रखते हैं बल्कि सहरा के अंदर फैली हुई इधर उधर मुसलमानों की बस्तियों को लूट कर अपने लश्कर के लिए खुराक और जरूरियात का दीगर सामान फराहम करते हैं। एक बार फिर सुल्तान रुकनुद्दीन के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उसने चारों मुखबिरों को मुखातिब किया, अब तुम जाओ और पहले की तरह अपने काम में मसरूफ हो जाओ। अगर तुम कोई नई खबर हासिल करो तो फिर मुझसे राब्ता कायम करना। तुम्हारी रहनुमाई के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा रुख पहले ट्यूनिस की बंदरगाह की तरफ होगा।
सुल्तान का यह हुक्म पाते ही वो चारों जासूस जिस सिमत से आए थे उसी सिमत अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए निगाहों से उछल हो गए थे। उनके जाने के बाद सुल्तान ने अपने पहले में घोड़े पर सवार तुर्निताई को मुखातिब किया। तुर्निताई, मेरे बेटे, मैं समझता हूँ क्योंकि अपने इन मुखबिरों ने फ्रांसीसी लश्कर से मुतालिक हमें बेहतरीन और कारआमद इत्तलात फराहम की है। इन मुखबिरों की रोशनी में मेरे बेटे मैंने एक फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस फैसले से इत्तेफाक करोगे। सुनो तुर्निताई, मेरे बेटे, जैसा कि मुखबिर बता चुका है कि फ्रांसीसी लश्कर इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा ट्यूनिस की बंदरगाह में अपने बहरी बेड़े की हिफाजत पर मामूर है और दूसरा हिस्सा जिसमें खुद लवी नहुम शामिल है ट्यूनिस की बंदरगाह से 20 मील दूर सहरा के अंदर बनो मरीन की छापा मारों के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ है। फ्रांसीसी लश्कर की ये हालत यकीनन हमारे सूरमंद है। तुर्निताई, मेरे बेटे, ये सारे इलाके मेरे देखे भाले हैं। इस वक्त हम ट्यूनिस की बंदरगाह से अंदाजन 20 मील के फासले पर है और मैं लश्कर को यही पड़ाव करने का हुक्म देने लगा हूँ। तुम अपने कुछ मुसलह जवान लश्कर के अतराफ में फैला दो ताकि अगर फ्रांसीसी हमारे जासूसी करने की गर्ज से इस तरफ आए तो मुसलह जवान उनका किला कम कर दे। तुर्निताई, मेरे बेटे, आने वाली रात गहरी होगी तो हम यहाँ से कूच करेंगे और फिर खुदावन ने चाहा तो आधी रात के बाद ट्यूनिस की बंदरगाह पर हम फ्रांसीसियों के लश्कर पर वो शबखुन मारेंगे कि ऐसा शबखुन से उन्हें अपनी जिंदगियों में कभी वास्ता और पाला नहीं पड़ा होगा। ऐसा ही शबखुन जो उससे तकरीबन 22 साल पहले मैं उस वक्त फ्रांसीसियों पर मार रहा था जब ये लवी नहुम बराह रास्त मिस्र पर हमलावर हुआ था और मंसूरा शहर से बाहर मैंने उसे बदतरीन शिकस्त दी थी। तुर्निताई, अपने लश्करियों को समझा देना कि ट्यूनिस की बंदरगाह पर दुश्मन के लिए किसी जहाज को आग मत लगाए, इसलिए कि मुझे पूरा यकीन है कि फ्रांसीसियों के जहाजों में खुराक के जखायर और हथियार के अंबार लगे होंगे। अगर हम जहाजों को आग लगाते हैं तो ये खुराक के जखीरे और हथियार भी तबाह हो जाएंगे। हमें हर सूरत में फ्रांसीसी जहाजों को बचाना है और वो हथियार और खुराक हमें बनो मरीन के लिए छोड़ने हैं ताकि वो उन पर कब्जा करके अपनी टूटी हुई कुव्वत को बहाल कर सके। तुर्निताई, मेरे बेटे, हमने सिर्फ फ्रांसीसियों पर शक इसलिए माना कि फ्रांसीसी लश्कर का वो आधा हिस्सा जो बंदरगाह पर मुतय्यन है उसका कत्लेआम करके उसे मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया जाए। तुर्निताई, मेरे बेटे, ये भी ख्याल रखना कि फ्रांसीसी लश्कर का आधा हिस्सा भी हमारे इस लश्कर से जो इस वक्त हमारे साथ है लगभग 4 गुना बड़ा होगा। इसके बावजूद मैंने और तुमने रात की तारीकी में फ्रांसीसियों को ट्यूनिस की बंदरगाह पर खून में नहलाते हुए मुकम्मल तौर पर उनका खात्मा करना है। ये हमारा पहला शबखुन होगा। ट्यूनिस की बंदरगाह फ्रांसीसियों से पाक करने के बाद हम अपने दूसरे शबखुन की तैयारी करेंगे और ट्यूनिस की बंदरगाह से हम सहरा के अंदर फ्रांसीसी लश्कर के उस हिस्से की तरफ बढ़ेंगे जिसकी रहनुमाई खुद लवी नहुम कर रहा है और वो बनो मरीन के छापा मारों की तलाश में है। रात की तारीकी में सहरा के अंदर हम फ्रांसीसियों के उस लश्कर पर भी नुज़ुल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उस पर भी गालिब आते हुए हम उसका खूब कत्लेआम करेंगे। इस तरह मुझे उम्मीद है कि हम फ्रांसीसियों को अफ्रीका की सरजमीन से बचकर वापस फ्रांस जाने का मौका नहीं देंगे। सुल्तान अपने दिन के अल्फाज से कुछ लम्हे अमीर तुर्निताई का चेहरा बिल्कुल संगीन हो गया था और उसकी आंखें कहर मारने की आग बरसाने लगी थी। थोड़ी देर तक वो कुछ सोचता रहा, फिर सुल्तान अपनुद्दीन को उसने मुखातिब किया। सुल्तान मोहतरम, मिल्लत की निगहबानी हम लोगों का महवर और दीन की पुष्ट बानी हमारे शानदार तमद्दुन का मरकज़ नुक्ता है। सुल्तान, यूरोप से हमारे लिए लहू से रंगीन सलेबी निकले हैं, लेकिन हम अपने हिम्मत को बढ़ाएंगे और उन पर हमला करेंगे। अमीर तुर्निताई जब खामोश हो तो सुल्तान अपनुद्दीन थोड़ी देर तक उसकी तौसीफी निगाहों से देखता रहा। फिर सुल्तान ने बड़ी शफकत और नरमी में कहा, तुर्निताई, मेरे बेटे, तेरे ख्यालात, तेरी बातें हमेशा ही मेरी दिलजमी, मेरे सुकून, मेरे इत्मीनान का बायस बनती है। जो अल्फाज तूने अदा किए हैं इंशाअल्लाह उन सहराओं के अंदर हम उन्हें अमली जामा पहना कर रखेंगे। मेरे बेटे, आओ अब हरकत में आओ, लश्कर का पड़ाव करें ताकि लश्करी खाना खाकर सुस्ताले आराम करें। इसके बाद हमें आधी रात के वक्त शबखुन मारने के लिए यहाँ से कूच करना भी है। अमीर तुर्निताई ने सुल्तान की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर सुल्तान के हुक्म पर आनंद फानंद लश्कर ने वहां पड़ाव कर लिया था और लश्कर के लिए खाना तैयार होना शुरू हो गया था। गहरी तारीख शबिस्तानों को सलाम में पेश कर रही थी और उसी लम्हे सुल्तान अपनुद्दीन और अमीर तुर्निताई ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने अपना पड़ाव उठा लिया और बड़ी राजदारी से दबे पांव चीते की तरह बड़ी तेजी से ट्यूनिस की बंदरगाह की तरफ बढ़े थे। ट्यूनिस की बंदरगाह से तकरीबन 1 मील दूर रहने के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर को रोक दिया। फिर रात की तारीकी में सुल्तान ने तुर्निताई से सरगोशी की। तुर्निताई, मेरे बेटे, ट्यूनिस की बंदरगाह इस वक्त मेरे सामने सिर्फ 1 मील के फासले पर है। देख, मेरा इरादा है कि हम दोनों एक ही सिम से हमलावर ना हो, इस तरह दुश्मन के भागने के इम्कान ज्यादा रहेंगे। अगर हम एक सिम से हमलावर होंगे तो दूसरी सिम से फ्रांसीसी लश्कर भागकर सहराओं के अंदर सरगर्दा अपने लश्कर के दूसरे हिस्से के साथ मिलेगा जो हमारे लिए तकलीफ का बायस बन सकता है।
मैं चाहता हूँ कि एक तरफ से तुम हमलावर हो और दूसरी सिम से मैं। हम उन फ्रांसीसियों को ना संभलने का मौका देंगे, ना उन्हें सहराओं के वस्ती हिस्से को भागने की मोहलत देंगे, और ना ही उन्हें अपने बहरी बेड़े में घुसकर अपने आप को महफूज कर लेने का मौका फराहम करेंगे। अब बोलो, तुम किस सिम से हमलावर होना पसंद करोगे? सुल्तान की इस गुफ्तगू के जवाब में तुर्निताई बोल पड़ा, सुल्तान, आप जिस सिमत खड़े हैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ यही रहे। मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ बंदरगाह से हटकर सहरा के अंदर एक लंबा चक्कर काटता हुआ और फ्रांसीसियों के लश्कर के मगरिब सिम जाके नमूदार होता हूँ। उस वक्त तक आप यही रहे। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद फिजा में जलते हुए परों का एक तीर चलाऊंगा जो मेरी तरफ से वहां पहुंचने का इशारा होगा। उसके बाद मेरे ख्याल में हमें बैक वक्त मशरिक और मगरिब दोनों सिमतों से फ्रांसीसियों पर हमलावर होना चाहिए, लेकिन इस हमले में हमें एक एहतियात जरूर रखनी चाहिए। रात की तारीकी में सुल्तान ने तुर्निताई की तरफ देखते हुए पूछा, तुर्निताई मेरे बेटे, तुम कौन सी एहतियात को मद्देनजर रखना चाहते हो? सुल्तान, मैं चाहता हूँ कि हम अपने पहले हमले में दुश्मन पर जरब सिर्फ समुद्र के किनारे किनारे रहते हुए लगाएंगे, ताकि फ्रांसीसी हमारे सामने से पसपा होते हुए अपने बहरी बेड़े में सवार ना हो सके। अगर हम उन्हें बहरी बेड़े में सवार ना होने दें और रात की तारीकी में अपने शबखून को कामयाब करते हुए उन्हें शिकस्त दें, तो लाजिमी बात है वो हमारे आगे आगे सहरा के वस्ती हिस्से में भागेंगे। हम उनका ताक़ुब करेंगे और सहरा में दूर तक उन्हें जाने की मोहलत ही नहीं देंगे और उनका खात्मा करके रख देंगे। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा करेंगे तो ट्यूनिस की बंदरगाह पर जो इस वक्त फ्रांसीसी लश्कर है उसका हम मुकम्मल तौर पर खात्मा कर सकते हैं। अमीर तुर्निताई के खामोश होने पर सुल्तान की रात के अंधेरी में सरगोशियों की सी आवाज सुनाई दी। तुर्निताई मेरे बेटे, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। अपने हमले की इब्तिदा हम समुद्र के किनारे किनारे रहते हुए करेंगे, ताकि फ्रांसीसी अपने जहाज़ों पर सवार होकर अपने आप को महफूज ना कर ले, और अगर हमसे मार खाने के बाद वो सहरा के उस हिस्से की तरफ भागते हुए, तो फिर उनका खात्मा हमारे लिए बड़ा आसान और सहल हो जाएगा। देख मेरे बेटे, अब आधी से ज्यादा रात हो चुकी है। मेरे ख्याल में अब तुम अपने लश्कर के साथ हरकत में आओ और ट्यूनिस की बंदरगाह के मगरिबी जानिब जाओ। मैं तुम्हारी फिजा में जलते परों के तीर बुलंद होने का बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा। इसके साथ ही अमीर तुर्निताई हरकत में और अपने हिस्से के लश्कर को उसने लिया और ट्यूनिस की बंदरगाह से हटते हुए एक लंबा चक्कर काटकर वो बंदरगाह के मगरिबी हिस्से की तरफ जा रहा था। तुर्निताई के जाने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन अपने घोड़े से उतरा, फिर वो साहिल की गीली रेत पर सजदा रेस हुआ और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा था। दुआ मांगने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन गीली रेत से उठा। उसकी हालत ये थी कि उसकी आंखों से आंसू रवा थे और खौफ खुदाबंदी में उसके कंधे पर जो अंगूछा था वो बार बार लटक कर गिरने को हो जाता था और उसे उसको संभालना पड़ता था। फिर उसने अपने कंधे से उछाल लिया और अपने बहते हुए आंसू को साफ करते हुए एक बार फिर उसने रात की तारीकी में आसमान की तरफ देखा। इंतहाई दर्दमंदी और दिल सोजी में सुल्तान फिर बोल पड़ा, ऐ चांद और सितारे ऐ कहकशाओं, ऐ चांद ऐ सितारों ऐ कहकशाओं, गवाह रहना मैं अपने इस मामले को अब अपने रब के सुपुर्द करता हूँ और रात की तारीकी में ट्यूनिस की बंदरगाह के करीब फ्रांसीसी दुश्मनियों के सामने अपने ही रब को पुकारता हूँ। उसके बाद सुल्तान की छाती तन गई थी, चेहरे पर सख्ती आ गई थी। बड़ी तेजी से अपने घोड़े की तरफ बढ़ा। एक असीली जुस्त के साथ वो घोड़े पर बैठ गया था और मगरिब में बड़ी बेचैनी से देखने लगा था। शायद उसे अमीर तुर्निताई की तरफ से फिजाओं में जलते परों के तीर की बुलंद होने का इंतजार था। थोड़ी ही देर बाद दूर मगरिब में रात की तारीकी के अंदर जलते परों का एक तीर बुलंद हुआ। वो तीर देखते ही रात की तारीकी में सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक बार बड़ी आजिज़ी से उसकी गर्दन फिर अपने ज़ेन के आहने की तरफ झुक गई और वो बोल उठा, आय अल्लाह, मैं तेरी नुसरत तेरी मदद की आरजू लिए अपने काम की इब्तिदा करने लगा हूँ। अल्लाह मेरे काम में बरकत डालना, मेरे परवरदिगार मुझे फताहमंद, मुझे सरफराज रखना। इसके साथ ही अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ ट्यूनिस की बंदरगाह की तरफ रात की तारीकी में बड़ी तेजी से पेशकदमी शुरू कर दी थी। ट्यूनिस की बंदरगाह के करीब समुद्र के किनारे किनारे सुल्तान रुकनुद्दीन अपने लश्कर के साथ अजल के कैफ और मस्ती दरिया उल्फत के अजनबी सफर की तरह हमलावर हुआ था। सुल्तान रुकनुद्दीन की इस हमले में नई ढप से लग गई थी, एक नया जोश और वलवला था। फ्रांसीसियों पर हमलावर होने के बाद सुल्तान ने बुलंद आवाज में तकबीरें पढ़ना शुरू कर दी थी, जिनके जवाब में उसके लश्करी भी तकबीरें बुलंद करने लगे थे और उनकी तकबीरों ने फ्रांसीसी लश्कर में एक तरह की बुखलाहट पैदा करके रख दी थी। सुल्तान की यूं हमलावर होने की थोड़ी ही देर बाद तुर्निताई भी हरकत में आया। सुल्तान रुकनुद्दीन की तकबीरों के जवाब में उसने भी समुद्र के किनारे मगरिबी से गोजों की चराते लहराते भंवर की तरह हमलावर हो गया था और उसने जोर से तकबीरें बुलंद करना शुरू कर दी थी। तुर्निताई की तकबीरों ने उस लश्करों के रग रग में जोश भर के रख दिया था। तुर्निताई कहर भरे अपने लश्कर को हरकत में लाया। फिर वो मगरिबी सिम से फ्रांसीसियों पर कोचे कोचे में हाथी
दरवाजों की तरह हमलावर हो गया था। थोड़ी देर तक सुल्तान रुकनुद्दीन और तुनिताई बड़ी तेजी के साथ हमला करते रहे, तुनिस की बंदरगाह पर उनकी तादाद को कम करते रहे। फिर जल्द ही फ्रांसीसियों ने अपने आप को संभाल लिया और लश्कर का वो हिस्सा जो अभी तक सुल्तान और तुनिताई के कत्लेआम से बचा हुआ था वो फौरन संभला। फिर उस लश्कर ने तिलसिमाती सिनसिनाउंड में चिंगारियों की तरह जवाबी कार्रवाई पर हमला किया था। तुनिस की बंदरगाह के करीब समुद्र के किनारे थोड़ी देर तक घुमसान जंग हुई। मैदान जंग के घिनौने सन्नाटों के कड़े सफर और आंधियों के दोष पर जिद्दी नुकुश की सूरत इख्तियार कर गया था। पर जल्द ही सुल्तान रुकनुद्दीन और तुनिताई ने समुद्र की हालत को संभाल लिया और तेजी के साथ उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। जब फ्रांसीसियों का तकरीबन दो तिहाई लश्कर सुल्तान और तुनिताई के हाथों तहे तेग हुआ, तब फ्रांसीसियों को यकीन होगा कि वो किसी भी सूरत रात की तारीकी में शब खून मारने वाले मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी तक वो ये जान न सके थे कि उन पर हमलावर होने वाली कुव्वत कौन है। फ्रांसीसियों के लिए दूसरी मुसीबत ये थी कि वो भागकर अपने जहाजों पर सवार भी नहीं हो सकते थे, इसलिए कि बड़ी तरबियत और बड़े नज़म के साथ समुद्र ही की तरफ से सुल्तान और तुनिताई उन पर ज़रबे लगा रहे थे और उस सिम से भागकर जहाज में सवार होना एक तरह से नामुमकिन था। लिहाजा बचा कुचा फ्रांसीसी लश्कर शिकस्त खाकर वस्ती सहरा की तरफ भाग गया था। सुल्तान रुकनुद्दीन और अमीर तुनिताई ने खौफनाक अंदाज में तकबीरें बुलंद करते हुए सहरा के अंदर रात की तारीकी में भागते हुए फ्रांसीसियों का ताक़ुब किया। एक ताक़ुब सहरा में 5 मील तक जारी रहा और इस अरसे में सुल्तान रुकनुद्दीन और तुनिताई ने पुष्ट की तरफ से फ्रांसीसियों पर हमलावर होते हुए उनके सारे लश्कर का काम तमाम करके रख दिया था। जिस वक्त मशरिक से सूरज तुलू हुआ, सुल्तान रुकनुद्दीन और तुनिताई दोनों फ्रांसीसियों का खात्मा करने के बाद अपने अपने हिस्से के लश्कर के साथ फिर तुनिस की बंदरगाह में वापस आ गए थे। यहाँ फ्रांसीसियों के पड़ाव से जो चीज भी उन्हें मिली उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और फ्रांसीसियों का वो सारा सामान जिसमें खुराक के जखीरे और हथियारों के अंबार थे जो जहाजों में लदे हुए थे, उसकी तरफ सुल्तान रुकनुद्दीन और तुनिताई ने आंख उठाकर भी ना देखा और इस सारे सामान और जहाजों को उन्होंने अफ्रीका के बनो मरीन से ताल्लुक रखने वाले हुक्मरानों के लिए छोड़ दिया था ताकि वो फ्रांसीसियों के हाथों अपने तबाह हाल मईशत को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाए। सूरज जब मशरिक से तुलू होकर खूब बुलंद हुआ तो सुल्तान और तुनिताई ने अपने लश्करियों को खाना खाने के बाद सुस्ताने का मौका फराहम कर दिया। खुद सुल्तान और तुनिताई एक जगह बैठकर अगले लाए अमल से मुतालिक गुफ्तगू करने लगे थे। थोड़ी ही देर बाद सुल्तान और तुनिताई के करीब सुल्तान के वही 4 मुखबिर नमूदार हुए। करीब आकर वो घोड़ों से उतरे और सुल्तान और तुनिताई के सामने आ खड़े हुए। सुल्तान उन्हें देखकर खुश हुआ, फिर सवाल किया, मेरे अजीजों, शायद तुम जान चुके होंगे कि फ्रांसीसी लश्कर का वो हिस्सा जो बंदरगाह की हिफाजत पर मामूर था, उस पर शब खून मारते हुए मैंने और तुनिताई दोनों ने उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया है। अब दुश्मन का पड़ाव हमारे कब्जे में है। मेरे ख्याल में तुम दुश्मन के दूसरे हिस्से से मुतालिक कोई खबर लेकर आए होंगे जो बनो मुरीन के छापा मारों की तलाश में सहरा के अंदर दूर तक घुसा हुआ है और जिसकी रहनुमाई खुद फ्रांस का बादशाह लवी नहुम कर रहा है। इस पर सुल्तान का एक जासूस बोल पड़ा, सुल्तान, आपका दौर दुरुस्त है। हम चारों फ्रांसीसी लश्कर के उस हिस्से का महले वकूफ जान कर आए हैं जिसकी रहनुमाई और कमांडर खुद फ्रांस का बादशाह कर रहा है। सुल्तान, हम चारों सबसे पहले तो आपको बंदरगाह पर मामूर फ्रांसीसी लश्कर का खात्मा करने पर मुबारकबाद देते हैं। इसके बाद आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आने वाली रात आप वस्ती सहरा के अंदर फ्रांसीसियों के दूसरे लश्कर पर भी शबखुन मारे तो हमें यकीन है कि आपका शबखुन बंदरगाह के शबखुन से भी ज्यादा होलनाक होगा, इसलिए कि फ्रांसीसी सहरा के अंदर बनो मरीन के छापा मारों की तलाश करने में नाकामयाब हुए हैं और हर वक्त वो सहमे और खौफजदा रहते हैं कि मुबादा कहीं से बनो मरीन की रजाकार और छापा मार अचानक सहरा की टीलियों से निकलकर उन पर हमलावर ना हो जाए और उन्हें मौत से हमकिनार ना कर दे। आने वाली रात फ्रांसीसियों के उस लश्कर पर भी शबखुन मारे तो फिर सुल्तान, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी फ्रांसीसी को अफ्रीका की सरजमीन से भागकर फ्रांस में दाखिल होना नसीब ना होगा। वो जासूस जब खामोश हो तो सुल्तान थोड़ी देर तक धीरे धीरे मुस्कुराता रहा। फिर सुल्तान कहने लगा, मैं तुम्हारी तजवीज से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। आने वाली रात फ्रांसीसी लश्कर के दूसरे हिस्से पर भी हम शबखुन मारेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं लवी नहुम का कब्रिस्तान ट्यूनिस की सहराओं में ही बनाऊंगा और मैं किसी भी लश्करी को भागकर फ्रांस न जाने दूंगा। अब तुम चारों लश्कर में आराम करो। उसके बाद जब रात गहरी होगी तो तुम लोगों ने उस जगह तक सहरा के अंदर हमारी रहनुमाई करनी है जहां फ्रांसीसियों का दूसरा लश्कर मसरूफ कार है। इसके साथ वो चारों मुखबिर वहां से हटकर लश्कर के अंदर चले गए थे। उन मुखबिरों के जाने के बाद सुल्तान ने अमीर तुनिताई की तरफ देखा। तुनिताई, अब भी और इसी वक्त अपने लश्कर से चंद दस्ते ऐसे मुतय्यन करो जो सहरा के अंदर यहाँ से लगभग 20-10 मील के इलाके तक फैल जाए और उस इलाके में जहाँ कहीं भी उन्हें कोई फ्रांसीसी नजर आए उसे देखते ही उसकी गर्दन काट दे। मकामी अशखास भी जो इस इलाके में दिखाई दे
ان سے پوری تفتیش کی جائے اور انہیں بندرگاہ کی طرف آنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ اس طرح صحرا کے وسطی حصے میں فرانس کے شہنشاہ لوی نہوم کو یہ خبر نہ ہونے پائے کہ اس کا آدھا لشکر جو تیونس کی بندرگاہ پر اس کے بحری بیڑے کی حفاظت پر مامور تھا، اس کا ہم نے کام تمام کر دیا ہے۔ تو نیتائی آج کا پورا دن اور آنے والی رات کا کچھ حصہ اپنے لشکروں کو آرام کرنے دو۔ آنے والے شب کو وسطی صحرا کے اندر فرانسیسیوں کے ساتھ ہم وہی کھیل کھیلیں گے جو تیونس کی بندرگاہ پر ہم تھوڑی دیر پہلے کھیل چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ خداوند نے چاہا تو صحرا کے اندر بھی ہم فرانسیسیوں کی حالت ایسی ہی کریں گے جیسے ان کی تیونس کی بندرگاہ پر کی ہے۔ میرے خیال میں اٹھو، ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چند مسلح دستوں کو صحرا کے وسطی حصے کی طرف روانہ کرنے کے بعد دونوں مل کر لشکر کے کھانے کے انتظامات پر بھی نگاہ رکھتے ہیں۔ تو نیتائی نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پہلو بہ پہلو ایک سمت چل دیے تھے۔ دشت افریقہ میں طویل سیاہ رات تصورات کے ستاروں عجائب پسندی کو آسودگی دے رہی تھی۔ نظر فریب تہذیب شاندار تمدن ٹکرا رہے تھے۔ ایسے میں آخری شب کے سناٹے میں نیم اندھیری صحرائی راستوں پر سلطان رکن الدین اور تونیتا اپنے لشکر کے ساتھ اجنبی رات میں فاصلوں میں لپٹتی خاموشیوں اور گہرائی میں ڈوبے خوابوں کی سی رازداری کسی ٹوٹنے والے ستارے کے سفر پر بے امد تاریکیوں کی طرح حملہ ہو گئے تھے۔ صحرا کے اندر سلطان رکن الدین کے چاروں جاسوس جو دشمن کے خبر لے کر آئے تھے وہ سلطان کے لشکر کی رہنمائی کر رہے تھے۔ گہری رات میں صحرا کے اندر ایک جگہ مخبروں کے کہنے پر سلطان نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ پھر اس نے استفہامیہ سے انداز میں مخبروں کی طرف دیکھا تو ایک مخبر بول پڑا، سلطان، یہاں سے ہم چاروں کے اندازے کے مطابق فرانسیسیوں کا لشکر صرف 5 میل دور ہوگا۔ لشکر پوری طرح بیدار اور چوکنا ہوگا، اس لیے کہ فرانسیسیوں کو صحرا کے اندر مسلمان چھاپا ماروں کی طرف سے اچانک حملہ ور ہونے اور شب خون مارنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ لہٰذا فرانسیسیوں کا آدھا لشکر رات کے وقت جاگتا ہے اور آدھا رات کے وقت آرام کرتا ہے۔ اس طرح باری باری رات کے وقت پہرا دے کر اپنے آپ کو شب خون سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلطان، رات کی تاریکی میں ہمارے لشکروں کے گھوڑوں کے نتھے پھڑپھڑانے یا ہنہنانے کی آوازیں فرانسیسیوں تک پہنچ جائے گی اور وہ ہمارے حملہ ور ہونے سے پہلے ہمارا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ رات کی تاریکی میں اس مخبر کی گفتگو سے سلطان کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر سلطان بول پڑا، میں تم چاروں کا شکر گزار ہوں کہ رات کی تاریکی میں تم نے لشکر کو روک جانے کا اشارہ کر کے دشمن کے محلے وقوع سے آگاہ کیا۔ اب تم لشکر کی پچھلے حصے میں چلے جاؤ، میں یہیں سے اپنے لشکر کی صفیں درست کرتے ہوئے حملہ ور ہونے کی صورت اختیار کر لوں گا۔ دشمن خواہ ہمارے پہنچنے تک جنگ کرنے کی پوری تیاری میں ہو، ہم اسے صحرائی جھگڑوں کی طرح اپنی لپیٹ میں لے کر رہیں گے۔ سلطان کا یہ حکم سنتے ہی وہ چاروں مخبر لشکر کے پچھلے حصے میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سلطان نے تونیتائی کو مخاطب کیا، تونیتائی میرے بیٹے آؤ، دونوں مل کر اپنے اپنے لشکر کو علیحدہ کر لیں۔ تم میرے بائیں جانب رہو، میں اپنے لشکر کو دائیں جانب رکھتا ہوں۔ اپنے چھوٹے سالاروں کو بھی سمجھا دو کہ یہ سے حملہ ور ہونے کے انداز میں اپنی صفیں درست کر لیں اور صحرا کے اندر رات کی تاریکی میں جب اچانک فرانسیسیوں سے ٹکراؤ ہو تو انہیں اپنے صفوں کی درہمی برہمی کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔ تم فرانسیسیوں کے بائیں جانب حملہ ور ہونا، میں دائیں جانب ضرب لگانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان رکن الدین اور تونیتائی دونوں نے اپنے اپنے لشکر کو علیحدہ کیا، جنگ کی صورت اختیار کرنے والی صفیں درست کر گئے۔ اس کے بعد بڑی برق رفتاری سے وہ صحرا کے اندر آگے بڑھے تھے۔ دوسری جانب فرانسیسیوں کو بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعے خبر ہو چکی تھی کہ مصر کا سلطان رکن الدین اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان پر شب خون مارنے کے در پہ ہے۔ تاہم ابھی تک ان کو یہ خبر نہ ہونے پائی تھی کہ سلطان نے فرانسیسی لشکر کے اس حصے کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جو تیونس کی بندرگاہ پر اپنے جہازوں کے پاس پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اسی بنا پر فرانسیسیوں نے بھی اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا اور جب سلطان اور تونیتائی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ فرانسیسیوں کے قریب پہنچے تب فرانسیسی اوہان کے جھگڑوں کی طرح بکھر گئے تھے اور سلطان رکن الدین کے لشکر کے حصے پر حملہ ور ہوا تھا اور دوسرا فرانسیسی لشکر اندھیروں کے آسیوں کی طرح تونیتائی کے لشکر پر حملہ ور ہو گیا تھا۔ سلطان اور تونیتائی نے پھرتیلے انداز میں ان دونوں کے حملے کو روکا۔ دوسری جانب فرانس کا شہنشاہ لوئی نہوم پہلے ہی مصر کے سلطان کے نام سے کانپ گیا تھا، اس لیے کہ 22 سال پہلے وہ سلطان کے ہاتھوں بدترین شکست کھا چکا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر کا سلطان پہنچ چکا ہے تو انتہا درجے کا بدحواس ہوا اور جنگ شروع کرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے محافظ دستے کو لے کر چپکے سے میدان جنگ سے نکلا اور تیونس کی بندرگاہ کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صحرا کی اس جنگ میں یقیناً سلطان رکن الدین فاتح رہے گا اور اگر سلطان نے تیونس کی بندرگاہ تک اس کا تعاقب کیا تو اپنے بحری بیڑے میں سوار ہو کر بچے کچے لشکروں کو لے کر فرانس کی طرف بھاگ جائے گا۔ تھوڑی دیر تک جم کر دشمن کے حملوں کو روکنے کے بعد سلطان نے جب معمول بلند آواز میں تکبیریں پڑھنی شروع کی
جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ سلطان دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترنے والا ہے۔ پھر سلطان نے آباد کھنڈروں کی طرح حملہ شروع کر دیے تھے۔ سلطان کی ان اقدام کی اتباع کرتے ہوئے تونیتائی نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ حملے شروع کر دیے تھے۔ سلطان اور تونیتائی کے دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترنے سے تاریکی چادر اوڑھے رات میں میدان جنگ تیز ہو گیا تھا۔ اب سلطان اور تونیتائی کے سامنے فرانسیسی لشکر کی حالت بڑی تیزی سے اجڑے راستوں کی طرح ہو گئی تھی۔ اپنے لشکر کی حالت دیکھتے ہوئے فرانسیسیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اسی لمحے فرانسیسی لشکر میں کسی نے خبر بھی پھیلا دی کہ ان کا بادشاہ لیوی نہم جنگ کے شروع میں تونس کی بندرگاہ کی طرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا تھا۔ حالانکہ اب تک یہ خبر راز میں رکھی گئی تھی اور یہ خبر پھیلتی ہی فرانسیسیوں کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو کر رہ گئے تھے اور فرانسیسیوں بدتمیز شکست اٹھاتے ہوئے سلطان رکن الدین اور تونیتائی کے سامنے سے تونس کی بندرگاہ کی طرف بھاگ گئے تھے۔ لیکن سلطان اور تونیتائی نے انہیں یوں آسانی سے بھاگنے نہ دیا۔ دونوں نے مل کر فرانسیسیوں کا تعاقب بڑی تیزی کے ساتھ شروع کر دیا۔ مشرق کی طرف سے اب روشنی کے آثار مکمل طور پر عیاں ہو گئے تھے۔ صحرا کے ہر شے اور ریت کے ذرے سے واضح ہونے لگا تھا کہ تعاقب تقریباً 5 میل تک جاری رہا اور اس 5 میل کے مسافت میں سلطان اور تونیتائی نے سارے فرانسیسیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح صحرا سے کوئی بھی فرانسیسی اپنی جان نہ بچا سکا۔ فرانس کا شہنشاہ لیوی نہم گو رات کی تاریکی میں جنگ کے شروع ہی میں صحرا کے وسطی حصے سے بندرگاہ کی طرف بھاگ گیا تھا، لیکن اپنے محافظ دستوں کے ساتھ جب تونس کی بندرگاہ پر وہ پہنچا تو اس نے دیکھا بندرگاہ کے اطراف اور اکناف میں دور دور تک فرانسیسی کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ بندرگاہ کے اطراف میں لاشوں کی وجہ سے تعاون پھیل چکا تھا اور جگہ جگہ لومڑے اور گیدڑ منڈلاتے پھر رہے تھے۔ لیوی نہم اور اس کا محافظ دستہ جو ہی بندرگاہ کے حصے میں داخل ہوا وہ تعاون کا شکار ہو گئے اور لیوی نہم جو اپنی جان بچا کر فرانس کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا تھا اسے بھاگنا نصیب نہ ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ تعاون کا شکار ہو کر تونس کے ساحل پر موت سے بغلگیر ہو گیا۔ یوں وہ سارا فرانسیسی لشکر جو فرانس سے افریقی ساحل پر اترا تھا ان میں سے کسی ایک کو بھی جان بچا کر فرانس واپس جانا نصیب نہ ہوا، حتیٰ کہ ان کا بادشاہ لیوی نہم خود بھی تونس کی بندرگاہ پر موت کا شکار ہو گیا تھا۔ سلطان رکن الدین اور تونیتائی اپنے لشکر کے ساتھ جب تونس کی بندرگاہ کی طرف آئے اور جاسوسوں نے انہیں خبر دی کہ بندرگاہ کے حصے میں داخل ہوتے ہوئے لیوی نہم اور اس کا محافظ دستہ تقریباً تعاون کا شکار ہو کر موت سے بغلگیر ہو گیا ہے، تو سلطان اور تونیتائی نے اپنے لشکر کے ساتھ بندرگاہ کا رخ نہیں کیا بلکہ وہیں سے انہوں نے واپس قاہرہ کی طرف کوچ کر لیا۔ فرانس کے بادشاہ لیوی نہم کے بدترین انجام سے بے خبر انگلستان کا شہزادہ ایڈوٹ انطاکیہ کی شکست کا بدلہ لینے اور سلطان رکن الدین سے بدترین انتقام لینے کے لیے ایک جرار لشکر لے کر انگلستان سے روانہ ہو گیا تھا۔ انگلستان کے علاوہ آس پاس کی چھوٹی بڑی ریاستوں اور نوجوانوں نے ایڈوٹ کا بڑے پرجوش انداز میں ساتھ دیا تھا۔ انگلستان سے روانہ ہو کر راستے میں ایڈوٹ نے چند روز تک سقیلیہ میں قیام کیا، اپنے لشکر کو چند دن تک سستانے کا موقع دیا۔ اس کے بعد وہ عرض فلسطین کے شہر عقا پہنچ گیا۔ ایڈوٹ کا ارادہ تھا کہ عقا شہر میں چند روز تک وہ اپنے لشکر کے ساتھ قیام کرے گا اور تازہ دم ہو کر سلطان رکن الدین کے خلاف جنگ کا آغاز کرے گا۔ ایک روز عقا شہر کے نواح میں انگلستان کے شہزادے ایڈوٹ کی لشکرگاہ میں برغوث داخل ہوا، وہی برغوث جو اپنے مسکن سے ناراض اور برگزشتہ تھا اور سوسا کے سرائے میں قدغان اور ارزون سے مل چکا تھا اور انہیں اشارہ بھی دے چکا تھا کہ وہ ایڈوٹ کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہے تاکہ اپنے گزشتہ گناہوں اور بدیوں کی تلافی کر سکے۔ لشکرگاہ میں سے گزرتے ہوئے وہ اپنا تعارف ایک فدائی کی حیثیت سے کراتے ہوئے برغوث ایڈوٹ کے خیمے میں داخل ہوا۔ لشکرگاہ میں داخل ہونے کے بعد اس نے یہ بھی صاف کر کہ اس کے پاس شہزادے ایڈوٹ کے نام مسکین کی طرف سے ایک خط بھی ہے جو بنفس نفیس وہ شہزادے کو پہنچانا چاہتا ہے، لہٰذا ہر لشکری نے ایڈوٹ کے خیمے تک اس کی صحیح رہنمائی کی۔ برغوث جب ایڈوٹ کے خیمے میں داخل ہوا، ایڈوٹ کے قریب چوبدار کے پاس آیا تو اس سے ایڈوٹ سے ملنے کی خواہش کا اس نے اظہار کیا۔ اس چوبدار نے پہلے سر سے لے کر پاؤں تک غور سے برغوث کی طرف دیکھا، پھر اس نے شکوک بھرے لہجے میں پوچھا، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور کیوں تم انگلستان کے شہزادے ایڈوٹ سے ملنا چاہتے ہو؟ اس پر برغوث بول پڑا، میں فدائین کی مسکین کی طرف سے آیا ہوں، میرے پاس مسکین کے امیر کی طرف سے شہزادے ایڈوٹ کے نام خط ہے اور یہ خط میں بذات خود شہزادے کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے مسکین کے امیر کے روابط صرف ایشیا کے نصرانی حکمرانوں سے ہی نہیں بلکہ انگلستان اور فرانس تک کے حکمرانوں کے ساتھ بھی ہے۔ اسی کے روابط اور دوستانہ مراسم ہے کہ انہیں مراسم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے مسکین کے امیر نے ایڈوٹ کو خط لکھا ہے۔ وہ خط شہزادے کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس خط میں دیگر امور کے علاوہ شہزادے کو سلطان رکن الدین کے خلاف حرکت میں آنے پر مدد اور تعاون کا بھی یقین دلایا گیا ہے۔ یہاں تک گفتگو کرنے کے بعد برغوث نے
अपने लिबास के अंदर से एक खत भी निकाल के चौबदार को दिखाया। वो जाली खत था जो फिदाइन के मस्किन के अमीर की तरफ से शहजादे इडूट के नाम लिखा गया था। खत को उलट पलट कर देखने के बाद चौबदार किसी कदर मुतमईन हो गया। फिर उसने बरगुस से कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें शहजादे इडूट से मिलाता हूँ। चौबदार का ये जवाब पाकर बरगुस खुश हो गया था, लिहाजा वो चुपचाप उस चौबदार के पीछे हो लिया था। चौबदार उसे लेकर खीमे में दाखिल हुआ। अंदर एक मसनद पर इडूट बैठा हुआ था। उसके दाएं बाएं कुछ और मुस्लिम लोग भी थे जिनसे शायद वो आने वाली जंग से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा था। खीमे में दाखिल होने के बाद चौबदार ने अपने सर को जमीन की तरफ खूब झुकाने के बाद इडूट को मुखातिब किया। आका, ये शख्स जिसे मैं अपने साथ लाया हूँ अपना नाम बरगुस बताता है। ये फिदाइन के मिस्किन के अमीर की तरफ से आया है। इस अमीर का आपके नाम खत भी उसके पास है और ये खत आपको पेश करना चाहता है। इसका कहना है कि इस खत में फिदाइन के अमीर ने सुल्तान रुकनुद्दीन के खिलाफ आपके ताउन और मदद का यकीन दिलाया है। अपने चौबदार की गुफ्तगू सुनकर इडूट बेहद खुश हुआ। फिर उसने बराह रास्त बरगुस को मुखातिब किया, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे अमीर की तरफ से मेरे नाम कोई खत है जिसमें उसने मुझे मिस्र के सुल्तान के खिलाफ मदद और हिमायत का यकीन दिया है तो वो खत मुझे पेश करो। बरगुस आगे बढ़ा। चुपचाप हाथ में पकड़ा हुआ खत उसने शहजादे इडूट को थमा दिया। शहजादा इडूट ने तहे शुदा कागज खोला। जिस वक्त वो खत पढ़ रहा था बरगुस अचानक हरकत में आया। अपने बगल के नीचे छुपाए हुए खंजर को उसने निकाला और आगे बढ़कर खंजर का वार उसने इडूट पर किया। वो चाहता था कि अपना तेज धार खंजर इडूट के दिल में घोंप दे, लेकिन इडूट एकदम एक तरफ हट गया, जिसकी बिना पर बरगुस का खंजर इडूट के जिस्म के एक पहलू को चीरता हुआ निकल गया था। बरगुस बेचारा दूसरा वार ना कर सका, इसलिए कि पीछे से चौबदार ने लपक कर उसे पकड़ लिया था और फिर जिस कदर मुसले जवान इडूट के दाएं बाएं बैठे हुए थे वो उठ खड़े हुए और बुरी तरह बरगुस को मारने लगे थे। बरगुस शायद अपनी जिंदगी से मायूस होता जा रहा था, लिहाजा उसने खीमे की छत की तरफ देखते हुए बड़े रिक्कत अमेज में अंदाज में कहना शुरू किया, ऐ अल्लाह मेरे खुदावन, गवाह रहना मैंने अजमतों की तिजारत, जिस्मों की सौदागरी करने वालों और नीले फलक तले जमर्द जमीन पर जबर तशद्दुद के खंजर चलाने वालों से किनारा कशी करते हुए सच्चे दिल के साथ इस्लाम कबूल किया था। मेरा अल्लाह गवाह रहना, मैंने हालत के शिकस्त सफाक को छोड़कर पूरे चांद की नरमी को अपनाया था। इससे आगे बरगुस कुछ ना कह सका, इसलिए कि उन लोगों ने मार मार कर उसका खात्मा कर दिया था। फिर उसकी लाश उठाकर वो बाहर ले गए थे। बरगुस के हमलावर होने की वजह से इंग्लिस्तान का शहजादा इडूट बुरी तरह जख्मी हुआ। 1 माह तक वो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा, पर उसकी जिंदगी के दिन बाकी थे। वो भला चंगा हो गया। उधर इंग्लिस्तान के बादशाह नहरी सुवम को भी खबर हो गई थी कि उसका बेटा अक्का शहर से बाहर जख्मी हो गया है, लिहाजा बड़ा फिक्रमंद हुआ और कासिर भेजकर उसने इडूट को लश्कर समेत इंग्लिस्तान वापस आने के लिए कहला भेजा। बरगुस के हमलावर होने से इडूट खुद भी ऐसा खौफजदा और परेशान हुआ था कि जख्म के मंदल होते ही उसने इरादा कर लिया कि वो एक दिन भी इस सरजमीन पर नहीं रहेगा। लिहाजा जो ही उसके जख्म मंदिल हुए, अपने लश्कर के साथ वो नाकाम और नामुराद अक्का शहर की बंदरगाह में अपने बहरी बेड़े पर सवार हुआ। फिर वो सलीका के रास्ते इंग्लिस्तान की तरफ चला गया था। यूं सुल्तान रुकनुद्दीन के खिलाफ यूरोप की 8वीं सलीबी जंग अपनी नाकामी, अपनी नामुरादी को पहुंच गई थी। से पहर के करीब एक रोज तुर्निताई जब अपने लश्करगाह से अपनी हवेली में दाखिल हुआ तो एकदम वो चौक सा पड़ा। उसने देखा उसकी हवेली के दीवान खाने में रुदा अकेली बैठी शायद उसी का इंतजार कर रही थी। दीवान खाने के करीब तुर्निताई अपने घोड़े से उतर गया था। इतनी देर तक उसका खादिम हिल्दून करीब आया और उसके घोड़े की बाग पकड़ते हुए अस्तबल की तरफ ले गया। तुर्निताई दीवान खाने के दरवाजे पर आया। रुदा को उसने मुखातिब किया, रुदा तुम कब से यहाँ बैठी हुई हो, क्या खैरियत तो है? इस पर रुदा ने मुंह बिसोर करने के अंदाज में कहा, काफी देर से यहाँ बैठी आपके मुंतजिर हूँ, बस आपके साथ एक फैसला करना चाहती हूँ। तुर्निताई कुछ फिक्रमंद हुआ, आगे बढ़ा और रुदा के सामने बैठ गया। फिर उसने पूछा, देख रुदा, तू मेरे साथ कैसा फैसला करना चाहती हो? जवाब में रुदा गहरी आवाज में बोल पड़ी, आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब मैं और मेरी नानी आपके यहाँ आई थी और मेरी नानी ने आप पर इंकिशाफ किया था कि रुदा आपको चाहती है, आपसे मोहब्बत करती है और आपकी रिफाकत की ख्वाहा है, तो आपने कहा था कि हम दोनों को मोहलत दी जाए कि हम एक दूसरे को समझ सके। बस मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि आप मेरी ज़ात को अब तक समझ चुके हैं या अभी मजीद मेरा कोई इम्तिहान मकसूद है। हालांकि सूसा शहर के अलावा अपने खीमे में भी आप मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला चुके हैं, फिर भी कुछ लोग आपकी तरफ से मुझे अपनाने का खुला इजहार चाहते हैं। रुदा की इस गुफ्तगू पर थोड़ी देर के लिए तुर्निताई की गर्दन झुकी रही। फिर उसने उसे मुखातब किया, पहले तुम अपने मुतालिक कहो, इसके बाद मैं तुम्हें अपने फैसले से आगाह करता हूँ। इस पर रुदा फौरन बोल पड़ी, अमीर मेरे मुतालिक क्या पूछते हो? मैं तो आपके सामने एक अरसे से कशकुल गदाई और कासाए खैरात लिए खड़ी हूँ। मैं तो जब से आपसे मुलाकात हुई है कशमकश में हूँ।
मैं इसी इंतजार में हूँ कि कब आपकी तरफ से कोई फैसला कुन जवाब मिले। अमीर, मेरी हैसियत तो पत्थर की बेजान मुजस्समे सी है। आपकी तरफ से एक तबस्सुम, जहर लब और मोहब्बत का एक इशारा मुझे जिंदगी के नगमों, चाहत भरे आहटों की गूंज और सुकून दिला सकता है, मेरे जिस्म में जान डाल सकता है। जब आपकी तरफ से इनकार मुझे सरापा इस्तिराब, मुजस्सम इंतजार तारीकिया में झोंक सकता है। रुदा यही तक कहने पाई थी कि तू निताई फिर बोल पड़ा। रुदा, आखिर तुम भी मुझसे मिलती रही हो, ये कहो कि तुमने मुझे कैसा पाया और मेरे मुतालिक इन सारी मुलाकातों के बाद तुम्हारे क्या ख्यालात हैं। रुदा फिर झट बोल पड़ी। अमीर, अगर मेरे दिल की बात पूछते हैं तो फिर सुनिए। आप मेरे लिए रूह के रोग में, जिस्म की लज्जत, समुंदर से सोग में सुख की लहर है। और अगर आपने मुझसे चाहत का इजहार किया, मुझे अपनाने का वादा किया, तो फिर ये रुदा की खुशकिस्मती होगी। रुदा जब खामोश हुई तो निताई की गर्दन थोड़ी देर तक झुकी रही, साथ ही साथ वो मुस्कुराता रहा। और रुदा गौर से उसकी तरफ देखते हुए एक तरह से उसकी तरफ से किसी जवाब का बेचैनी से इंतजार भी कर रही थी और उसकी मुस्कुराहट से लुत्फ अंदोज भी हो रही थी। फिर निताई ने रुदा की तरफ देखा और कहना शुरू किया, रुदा, जमीन और आसमान के इस काफिले में मैं तुम्हारे बदन की खुशबू, तुम्हारे सांस की महक को तारीख शब की रुवादाना बनाने के लिए तन्हा नहीं छोड़ूंगा। सुन रुदा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाना, अपना रफीक और अपने जिस्म का एक हिस्सा बनाने का फैसला कर चुका हूँ। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम मेरे वकार का शाहकार नक्श हो और तुम्हारे जमाल सहर मेरे लिए ख्याल पाइंदा है। यहाँ तक कहने के बाद तो निताई खामोश हो गया। उसकी इन अल्फाज से रुदा की हालत बिल्कुल बदल गई थी। फिर रुदा को न जाने क्या हुआ, खुशी से जज्बात में मगलूब वो अपनी जगह से उठी, एकदम से आगे बढ़कर तो निताई से लिपट गई और खुशियां बरसाती हुई आवाज में कहने लगी, अमीर, आज से आप मेरे जमाल की एक एक किरण की रोनाई, मेरे हुस्न की एक एक हसीन अंगड़ाई है। पहली बार रुदा जज्बाती अंदाज में यूं अमीर तो निताई करीब हुई थी। अमीर ने देखा खुशी में रुदा पंखड़ी बू से बिखरते लहकुर होती चली जा रही है। फिर कमरे में बेपनाह खुशियों और मसरतों में डूबी हुई रुदा की आवाज सुनाई दी, अमीर, आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। तो निता ने फौरन अपना हाथ आगे करते हुए रुदा की राह रोक ली और पूछा, तुम कहाँ जाने लगी हो? रुदा कहने लगी, मैं उन लोगों को बुलाने लगी हूँ जिनकी वजह से आपने मुझे ये गुफ्तगू की है, इसलिए कि उन्हें अभी तक मेरी और आपकी इस गहरी मोहब्बत का यकीन न था। मैं उन सबको बुलाने लगी हूँ जो मेरे साथ आए हैं और जिन्होंने मुझे आपसे गुफ्तगू करने के लिए इस दीवान खाने में बैठा दिया है। रुदा ने मुस्कुराते हुए और गौर से निताई की तरफ देखते हुए जवाब दिया। निताई बेचारा परेशान सा हो गया। दोबारा उसने पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? रुदा ने हल्के हल्के कहे बरसाती हुई आवाज में कहना शुरू किया, अभी आपको पता चलता है कि मेरे साथ कौन आए हैं। इसी दौरान दीवान खाने के दरवाजे के करीब ही निताई का खादिम हिल्दुन नमूदार हुआ। उसे मुखातब करके रुदा ने फौरन कहने लगी, अब हिल्दुन सबको बुलाओ, मेरा और अमीर निताई का मामला आपस में तय हो चुका है। रुदा की इस गुफ्तगू से हिल्दुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर वो पीछे हट गया। रुदा दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। निताई अजीब सी शशोपन में और परेशानी में उसकी तरफ देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद दीवान खाने में सुल्तान रुकनुद्दीन, सैफुद्दीन, हुस्सामुद्दीन उलियास, सफ्तुन आमूस, समीर के अलावा हिल्दुन और हबासा दोनों मियाँ बीवी दाखिल हुए। उन्हें देखते हुए निताई और रुदा दोनों अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। फिर हैरत ज़दा से लहजे में निताई बोल पड़ा, सुल्तान, अमीर सैफुद्दीन, आप यहाँ? क्या ये सब कुछ सोची समझी तदाबीर के तहत किया गया है? जवाब में सुल्तान और अमीर सैफुद्दीन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो सब दीवान खाने में बैठ गए। उसके बाद सुल्तान ने निताई को मुखातिब किया, निताई, मेरे बेटे, आज पहले पहर उलियास, सामूस, सफ्तुना तीनों मेरे यहाँ गए थे। ये चाहते थे कि अब जबकि मैं और तुम अपने लश्कर के साथ अफ्रीका से लौट आए हैं तो तुम्हारी और रुदा की शादी कर दी जाए, लेकिन मैंने इनसे कहा कि इन दोनों का उन्नीदा मालूम कर लिया जाए कि वाकई वो दोनों एक दूसरे को समझने के बाद एक दूसरे की ज़रूरत महसूस करते हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि अगर वो दोनों एक दूसरे का रफीक और साथी बनने का अहद करते हैं तो फिर ये शादी अभी नहीं होगी। इसलिए कि चंद रोज तक मैं निताई, सैफुद्दीन और हुस्सामुद्दीन एक अहम मुहिम पर निकल रहे हैं। उसके बाद तुम्हारी और रुदा की शादी हो सकती है। निताई, मेरे बेटे, तुम दोनों के खैरात जाने के बाद हम तुम्हारी हवेली में आए। हिल्दुन और हबासा दोनों को सारे हालात हमने बता दिए। हम दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए थे। दीवान खाने में हम रुदा को बैठा दिया था। मैं चाहता था कि जब तुम लश्करगाह से वापस लौटो तो तन्हाई में दीवान खाने में रुदा से मिलो। इस तरह तुम दोनों को आपस में गुफ्तगू करने का मौका मिल जाएगा और तुम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो। अब तुम दोनों बताओ, तुमने क्या फैसला किया है? जवाब में अमीर निताई ने एक बार रुदा की तरफ देखा, फिर सुल्तान को उसने मुखातिब किया, सुल्तान मोहतरम, ये जवाब मैंने देना है या रुदा ने? सुल्तान मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, निताई, मेरे बेटे, जवाब तो तुम्हें ही देना है। निताई झट से बोल पड़ा,
सुल्तान मैं और रुदा एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को अपनाने और एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाने का अहद कर चुके हैं। तो निताई के इस फैसले से जहां सुल्तान रुकनुद्दीन, सैफुद्दीन और हुसामुद्दीन के चेहरों पर मुस्कुराहट फैली थी, वहां उलियास, आमूस, समीर, सफ्तुना, हिल्दुन, हुबासा भी खुशी का इजहार करते रहे। इसी खुशी और मसरतों मिले जुले माहौल में सुल्तान रुकनुद्दीन फिर बोल पड़ा, तो निताई मेरे बेटे उलियास और आमूस के अलावा रुदा की नानी सफ्तुना की भी ख्वाहिश थी कि इन दिनों जबकि तुमने काहिरा में क़याम कर रखा है, तुम्हारी रुदा की शादी का एहतमाम कर दिया जाए। लेकिन मैंने इसे तस्लीम नहीं किया। देख बेटे, मैं, तुम, सैफुद्दीन और हुसामुद्दीन चंद दिन तक ईसाइयों के बड़े हिसार हसन अलाकर्द की तरफ रवाना होने वाले हैं, जहां हमसे शिकस्त खाने वाले सारे नसरानी जंग के लिए जमा ही नहीं बल्कि बातिनों का एक लश्कर और मजीद ये कि तातारियों का एक लश्कर भी वहां जमा हो चुका है और ये मुत्तहद लश्कर हम पर ज़रब लगाने के लिए परतोल रहा है। मैं चाहता हूँ कि कबल इसकी कि वो हमारी तरफ पेशकदमी करे, हम अपने खुदावंद का ज़ात बनकर उन पर टूटे और उनके इत्तिहाद को मुंतशिर करके उन्हें ऐसी इबरतनाक शिकस्त दें कि आइंदा वो हमारे खिलाफ इकट्ठे होने की जुर्रत ना करे। इन हालत में तू निताई मेरे बेटे, मैंने फैसला किया कि फिलहाल तुम्हारी और रुदा की मंगनी कर दी जाएगी और इस मंगनी की रस्म आज बल्कि अभी अदा की जाएगी। क्या इस सिलसिले में तुम्हें कोई इतराज़ है? जवाब में तो निताई मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुल्तान आप कोई फैसला करें तो मुझे क्या मजाल कि मैं आपके फैसले से इख्तिलाफ करूँ। आपका फैसला तो निताई के लिए आखिरी है। तो निताई का ये जवाब सुनकर अजीब से अंदाज में सुल्तान ने उलियास की तरफ देखा। उलियास आगे बढ़ा और एक इंतहाई कीमती अंगूठी उसने रुदा को थमा दी। इसी दौरान सैफुद्दीन भी हरकत में आया और एक अंगूठी अपने लिबास के अंदर से निकालकर उसने तो निताई की तरफ बढ़ाई और बोल पड़ा, तो निताई मेरे बेटे, ये अंगूठी तुम्हारी मंगनी के लिए खुसूसियत के साथ सुल्तान ने खुद मुहैया की है। अब तुम खुद ये अंगूठी रुदा को पहना और रुदा के नाना ने जो अंगूठी रुदा को दी है वो तुम्हें पहनाती है। इस तरह इस रस्म की तकमील होगी। तो निताई ने वो अंगूठी थाम ली, फिर हाथ आगे बढ़ाया। रुदा ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। तो निताई ने वो अंगूठी रुदा की नाजुक उंगली में पहना दी थी। फिर रुदा खुद भी हरकत में आई और जो अंगूठी उसकी नानी उलियास ने उसे दी थी वो उसने मुस्कुराते हुए तो निताई को पहना दी थी। इसके साथ ही सब उलियास आमूस को मुबारकबादी देने लगी थी। उसके बाद उलियास ने तो निताई को मुखातिब किया, तो निताई मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुम और रुदा एक दूसरे से मंसूब हो चुके हो। इस निस्बत के हवाले से मेरे यहाँ छोटी सी एक तकरीब होगी जिसकी तफसील खुद तुमसे सुल्तान कहेंगे। उलियास खामोश है तो सुल्तान बोल पड़ा, तो निताई मेरे बेटे, आज शाम उलियास के घर तुम दोनों की निस्बत तय होने की खुशी में जो तकरीब मुनक़िद की जा रही है इसमें मैं खुद भी शामिल हूँगा, सैफुद्दीन, हुसामुद्दीन भी होंगे। इसके अलावा तुम्हारे लश्कर के बहुत से छोटे बड़े सालार भी तुम्हारी निस्बत के हवाले से खुशी के इस मौके में शरीक होंगे। और सुनो तो निताई मेरे बेटे, उलियास और आमूस की ख्वाहिश भी है कि इस निस्बत के बाद शाम तक तुम उनके घर रहो, ये उनकी खुशी और सुकून का बाइस होगा। अब तुम रुदा को लेकर आमूस और उलियास के साथ जाओ। मैं, सैफुद्दीन, हुसामुद्दीन और दीगर सालार शाम के वक्त उलियास की हवेली में आएंगे। इसके साथ ही सुल्तान रुकनुद्दीन, सैफुद्दीन और हुसामुद्दीन वहां से चले गए थे। थोड़ी देर बाद खुद अमीर तो निताई भी उलियास, आमूस, सफ्तुना, रुदा और समीर के साथ हो लिया था। चंद दिन बाद सुल्तान रुकनुद्दीन अपने जर्रार लश्कर के साथ काहिरा से निकला। उसके लश्कर की नकल और हरकत इतनी तेज थी कि सलीबियों के लिए उसके अज़ाइम को भापना सख्त मुश्किल और दुश्वार और मुहाल होकर रह गया था। वो अभी सुल्तान रुकनुद्दीन के हदफ के बारे में कियास आराइयाँ ही कर रहे थे कि 24 मार्च 1271 ईस्वी को सुल्तान रुकनुद्दीन हसीन अलाकरात के किले के सामने नमूदार हुआ। यहाँ किले से बाहर पहले ही सलीबियों, तातारियों और बातिनियों पर मुश्तमिल एक इत्तेहादी लश्कर पड़ाव किए हुए था। ये लश्कर इस इंतजार में था कि कोई मुनासिब मौका मिले तो सुल्तान पर हमलावर होकर उस पर नाक़ाबिल तलाफी ज़रब लगाए। जिस वक्त हसन अलाकर्द के बाहर सुल्तान रुकनुद्दीन अपने लश्कर के साथ उनके सरों पर जा पहुंचा तो सुल्तान का मुकाबला करने के लिए वो मुस्ताद हो गए। उनका ख्याल था कि सुल्तान रुकनुद्दीन अपने लश्कर के साथ उनके सामने पड़ाव करेगा, उसके बाद अपने लश्कर को सुस्ताने का मौका फराहम करने के बाद जंग की इब्तिदा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुल्तान ने शायद रास्ते ही में अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करके उसे मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा हुआ था, लिहाजा सलीबियों के इस मुत्तहद लश्कर के करीब आते ही सुल्तान उन पर झुलसी धरताती अंगारों की तरह हमलावर हो गया था। सुल्तान के इन हमलों का जवाब देने के लिए मुत्तहद सलीबी लश्कर ने भी जवाबी कार्रवाई की और वो भी जान का आज़ाद बनने सलासिल की तरह लश्कर पर टूट पड़े थे। सलीबियों, तातारियों और बातिनियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किला हसन अलाकरात के बाहर सुल्तान को पसपा होने पर मजबूर कर दे, लेकिन ऐसा ना हो सका। जंग जब अपने उरूज पर थी तो सुल्तान ने बार बार अपने लश्करों का हौसला बढ़ाते हुए तकबीरें बुलंद करने लगा था। सुल्तान के ऐसा करने से उनके लश्कर में एक दूसरे से सर तक खून खौला देने वाली तकबीरें बुलंद होना शुरू हो गई थी और उन तकबीरों के बुलंद होने के साथ ही लश्करी सर पर कफन बांधे
और अपनी जानों को हथेली पर सजाए दुश्मन के अंदर घुसकर उनका कत्लेआम करने लगे थे। थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन सैफुद्दीन तुनितई और हुसामुद्दीन ने अपने तेज और जानलेवा हमलों के बाइस दुश्मन को हिला कर रख दिया था। ऐसा महसूस होने लगा था कि सुल्तान के हमलों के सामने सलीबियों, तातारियों और बातिनियों की ना ओसान बस रहे हैं, न एहसास बाकी बचे हों। सुल्तान के जहरीले हमलों के बाइस उनके बदन बर्फ की तरह पिघलना शुरू हो गए थे। फिर लम्हा ब लम्हा जंग तेज होती चली गई और सुल्तान के लश्करी सलीबियों की मुत्तहद लश्कर पर छाते चले गए, यहाँ तक कि सुल्तान रुकनुद्दीन के मुकाबले में तातारियों, बातिनियों और सलीबियों को बदतरीन शिकस्त हुई। तातारी बातिनी अपने अपने मिस्किनों की तरफ भाग गए थे, जबकि सलीबियों का लश्कर हसन अल करात के किले में दाखिल होकर महसूर हो गया था। सुल्तान रुकनुद्दीन ने हसन अल करात का मुहासरा कर लिया। ये किला एक गोल बंजर पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। ये जबरदस्त और मुस्तहकम किला कमरून वस्ता के किलों में सबसे ज्यादा मजबूत तरीन ख्याल किया जाता था। ये उस शुमाली दरपे का पासबान ख्याल किया जाता था जो तराबिलस और तरतूस और हमस और हमाद के मैदानों के दरमियान था। इस किले में बैक वक्त कई हजार फौज क्याम कर सकती थी और ये तराबिलस के काउंट की मिल्कियत था। किले के अंदर महसूर होने वाले जंगजू टेम्पलर्स ने महसूर रहते हुए सुल्तान का मुकाबला करना चाहा। उन्होंने 15 दिन तक महसूर रहकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन लम्हा बलम्हा सुल्तान उन पर हावी होता चला गया। फिर ऐसा हुआ कि सुल्तान ने फसील का एक हिस्सा तोड़ कर रख दिया। ये सूरत हाल देखते हुए टेम्पलर्स जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर ख्याल करते थे, उन्होंने सुल्तान रुकनुद्दीन के सामने हथियार डाल दिए। सुल्तान ने किला हसन अल करात पर कब्जा करने के बाद उसकी मरम्मत कराई और उसकी फसील पर अपनी फतह का कुतबा नस्ब कराया। हसन अल करात पर कब्जा मुस्तहकम करने के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ फिर एक नया खेल खेला। वो बड़ी तेजी से गौल बयाबानी की तरह तराबलिस की तरफ बढ़ा और उसका मुहासरा कर लिया, लेकिन अचानक सुल्तान ने ईसाई दुनिया को एक अजीब सा चक्कर दिया। चंद दिन के बाद सुल्तान ने एकाएक मुहासरा उठा लिया और सलीबियों के सबसे बड़े गट बेरूत, हदिया और सूर के पास से गुजरता हुआ सुल्तान सलीबियों के एक और बहुत बड़े किले मांटफोर्ट के करीब जा नमूदार हुआ। उस किले में भी सलीबियों का एक बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था, जिसकी इत्तला सुल्तान को उसके जासूसों ने दी थी। किले में मुकीम सलीबियों के लिए हमला कतई गैर मुतवक्की था, ताहम उन्होंने कुछ देर तक सुल्तान का मुकाबला किया, हाथ पांव मारे, मगर सुल्तान के सामने उनकी कोई पेश न की गई। आखिर उन्होंने अक्का के सलीबियों को अपनी मदद के लिए बुलाया, लेकिन उससे पहले उनको कहीं से मदद पहुंचती सुल्तान किला बैरूनी इस्तेहकामात को पामाल करता हुआ अपने लश्कर के साथ किले में दाखिल हो गया। सुल्तान ने किले पर कब्जा रोकने के बाद उसको मुनहदम करने का हुक्म दिया और उस वक्त तक वहां से ना हटा जब तक उसके मजबूत किले की बुनियादें तक ना खोदी जा चुकी। सुल्तान की पैदर पे फुतुहात से सलीबी वहशतज़दा हो गए। सुल्तान की लगातार फुतुहात से खौफजदा होते हुए सलीबियों ने अपने कई छोटे छोटे किले खुद ब खुद ही सुल्तान के हवाले कर दिए थे। इसके अलावा जो नसरानी शहर और किला जो अभी तक सुल्तान के फातिहाना यलगार और तर्कताज से बचे हुए थे, उन सब किलों और शहरों को सुल्तान के सामने अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा था। इन हालात में उन सारे शहरों और किलों के सलीबी हुक्मरान एक जगह जमा हुए और सर जोड़कर गठजोड़ करते हुए ये फैसला किया कि सुल्तान रुकनुद्दीन से सुलह की दरख्वास्त की जाए, उनसे माफी मांगी जाए और आइंदा उनके साथ पुरअमन रहने का वादा किया जाए। चुनांचे सुल्तान रुकनुद्दीन किसी नई नसरानी किले पर हमलावर होने से मुतालिक अभी सोच ही रहा था कि नसरानियों के कासिद सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने इंतहाई लजाजत आमेज पैराई में सुल्तान से सुलह और माफी की दरख्वास्त की। सुल्तान बड़ा वसी इंसान था, सलीबियों की मन्नत समाजत पर उसका दिल बस गया और उसने कुछ शराइत पर सलीबियों से सुलह करने पर आमदगी इजहार कर दी। उनमें दो अहम शराइत ये थे, सलीबी अपने किलों के मौजूदा इस्तेहकामात में इजाफा नहीं करेंगे, वो उन किलों और शहरों में मुकीम मुसलमानों से रवादारी का बर्ताव करेंगे और नवाही इलाकों के मुसलमानों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सलीबियों ने सुल्तान की सब शराइत बिला तामुल कबूल कर ली और सुल्तान के साथ सलीबियों का 10 साल 10 महीने और 10 दिन तक अमन मुआहिदा हो गया। ये मुआहिदा 1272 में लिखा गया था। इस मुआहिदे की अहमियत का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि ईसाइयों की तरफ से इस पर इंग्लिस्तान के बादशाह और अंताकिया के साबिक बादशाह बुहिमान तक ने दस्तखत की और उनकी मौत के बाद भी उनके जानशीनों इस मुआहिदे की तस्दीक की। सलीबियों को मुकम्मल तौर पर अपने सामने झुकाने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ बातिनियों के इस्तेहसाल का इरादा कर लिया था। बातिनिया हशाशीन की खुफिया तहरीक की बुनियाद हसन बिन सबा ने हिजरी
83 में रखी थी और वो बुनियादी लिहाज से एक मामूली हैसियत का हामिल था, लेकिन अपनी गैर मामूली ज़िहानत और बुलंद हिम्मती के बदौलत उसने बड़ा उरूज हासिल किया। उसने सबसे पहला किला अल-मौत पर कब्जा किया, जो निहायत पेचीदा घाटियों के अंदर एक बुलंद पहाड़ी की चोटी पर वाक़ था और किसी दुश्मन के लिए मौत की दरिया में तीरे बगैर उस पर कब्जा करना मुहाल था। हसन बिन सबा ने उस किले को अपना सदर मकाम बनाया। सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के दौर में हसन बिन सबा की क़ियादत में बातियों ने बड़ा जोर पकड़ा। उन्होंने किबस, काबुल, तोन, खलजान, गिरदकोह, खुर, खुसूफ, उर्दुहन, किला अन्नासुर, किला तबनूर और 20 दूसरे किलों पर कब्जा करके जबरदस्त फौजी कुव्वत जमा कर ली और एक अलहदा मलिकत कायम कर ली, जो दौलत इस्माइलिया मशरिकिया या दौलत मल्लाहरा कहसातान के नाम से मशहूर हुई। इसके हुक्मरान का लक़ब शेखुल जबल था। उन बातिनों के कई दर्जे थे, दाई दाआ, दाई कबीर, दाई रफीक, दाई फिदाई वगैरह। फिदाई वो गुरोह था जो आंखें बंद करके बिला उज़्र हुज्जतुल शेखुल जबल के हुक्म की तामील करना अपना फर्ज आइन समझते थे। कहा जाता है कि हसन बिन सबा ने दुश्वार गस पहाड़ियों से घिरी हुई एक घाटी में एक मसनूई जन्नत भी बना डाली थी। मोरिखी ने उस मसनूई जन्नत का ऐसा दिलकश नक्शा खींचा है कि निगाहों के सामने असली जन्नत के नज़ारे घूम जाते हैं। हसन अपने कुछ मुरीदों को भंग यानी हशीशें पिलाकर मदहोश कर देता था, फिर उनको उसी मदहोशी की हालत में अपने मसनूई जन्नत में पहुंचा देता था। चंद दिन के बाद उनको इसी तरह मदहोश करके अपनी जन्नत से बाहर निकाल देता था। यही लोग फिदाई बन जाते थे। वो एक दफा जन्नत का जलवा देखकर हमेशा उसके आरज़ू में मस्त रहते थे और शेखुल जबल के हुक्म पर पहाड़ों से कूद कर या किसी दूसरे तरीके से जान देने को हंसी खेल समझते थे। बातिनियों ने चंद साल के अंदर अंदर इतनी जबरदस्त कुव्वत पैदा कर ली कि सुल्तान मोहम्मद सल्जूकी और सुल्तान संजर सल्जूकी अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद उनका किला कम ना कर सके। हसन बिन सबा और उसके जानशीन जिस शख्स को अपना मुखालिफ पाते उसे किसी फिदाई के हाथों कत्ल करवा डालते। फिदाइयों का आला कत्ल बिल अवाम जहर में बुझी हुई तेज धार की छुरियां या खंजर होते थे। उन्होंने मुसलमानों के बेशुमार दीनी पेशवाओं, हुक्मरानों और सियासी रहनुमाओं का कत्ल किया। बातिनियों फिदाइयों ने अकाबिर वक्त के अलावा आम मुसलमानों को भी बकसरत धोखे से मौत की घाट उतारा। सिर्फ असफहान में जो साजिश सुल्तान मोहम्मद के ज़माने में पकड़ी गई, उसमें 500 के करीब मुसलमानों की लाशें एक मकान से निकली थी। उन बदबख्तों ने मुसलमानों के पुष्ट पनाह मुजाहिद कबीर सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी कातिला हमला करने से दरेज न किया। ये लगभग बात है सुल्तान अपनी खूबी किस्मत से बच गया, वरना बातिनों ने अपनी तरफ से उसकी जिंदगी का चिराग गुल करने में कोई कसर न रखी थी। गर्ज दहशत पसंद गुरूह तकरीबन 170 साल तक आलम इस्लाम के जिस्म का नासूर बना रहा। खुदा की कुदरत के उनका मरकजी कुव्वत का खात्मा भी एक दूसरे दुश्मन इस्लामी गुरूह के हाथों हुआ। हिजरी 654 हिजरी में हिलाकू खान सील बाला की तरह किला मौत की तरफ बढ़ा और उसकी ईंट से ईंट बजा दी। उस वक्त बातिनों का हुक्मरान रुकनुद्दीन खुरशाह बिन अलाउद्दीन था। हिलाकू ने बातिनों के मरकजी किला मौत के अलावा तकरीबन 100 दूसरे किले भी बर्बाद कर डाले और 12,000 से ज्यादा बातिनों को कत्ल किया। हिलाकू खान ने अगरचे बातिनों पर बड़ी कारी ज़रब लगाई थी, लेकिन वो उनका किला मुकम्मल खात्मा ना कर सका। इसका सबब यह था कि बातिनों के कुछ किला शाम के इलाके में वाक़ थे। चूंकि सुल्तान रुकनुद्दीन ने हिलाकू और तातारियों को शिकस्त देकर शाम से निकाल दिया था, इसलिए किले उनके दस्ते बरों से बच गए थे। शाम में बातिनों की अहम पनाहगाहें हैं। उस वक्त बानीस, मसाद, कहफ और ख्वाबी थे और सुल्तान रुकनुद्दीन ने उन्हीं 4 किलों पर ज़रब लगाने का इरादा कर लिया था। ये किला पहाड़ी इलाकों में नहायत महफूज मकामात पर बनाए गए थे और इनकी दिफा के लिए हजारों हशीशी जंगजू हर वक्त कमर बस्ता रहते थे। उन लोगों ने अपनी मरकजी कुव्वत की बर्बादी से कोई सबक हासिल न किया, बल्कि एक दूसरे इस्लामी दुश्मन गुरोह से सासबाज करके शाम और लबनान में उन्होंने हैकली सलीबों को अपना हलीफ बनाया, जो सुल्तान रुकनुद्दीन और आम मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। इसी तरह उन्होंने यूरोप के ईसाई बादशाहों से भी दोस्ती की पेशकश बढ़ाने की शुरू की। सुल्तान रुकनुद्दीन के खिलाफ रेशा दवानियाँ करना और अतराफ और अकनाफ के मुसलमानों को अपनी दहशत गर्दी का निशाना बनाना उनका मशहूर मशगला था। सुल्तान ने कई साल तक उनके शर अंदाज को बर्दाश्त किया, लेकिन अब उसका पैमाना लबरेज हो चुका था। लिहाजा उसने अपने लश्कर के साथ बाकी बचने वाले बातिनों के चारों वो किलों को निस्त नाबूद करने का इरादा करके शाम का रुख किया। सुल्तान रुकनुद्दीन की इस पेशकश
पेश कदमी की इत्तला बातिनों को भी हो चुकी थी। लिहाजा उनके चारों किलों के अंदर जिस कदर मुसले और जंगजू थे उन सबको उन्होंने बिनियाज के किले से बाहर एक जर्रा लश्कर की सूरत में जमा कर लिया था, ताकि जब सुल्तान वहां पहुंचे तो बातिन अपनी पूरी कुव्वत से सुल्तान के ऊपर इस अंदाज में हमलावर हो कि सुल्तान को मैदान जंग से भागे बगैर ही ना कोई रास्ता ना रहे। दूसरी तरफ सुल्तान के जासूस और तिलागर दस्ते भी सुल्तान को बातिनों के पल पल की खबरें पहुंचा रहे थे और उन्हें खबर हो चुकी थी कि बातिनों ने एक मुत्तहद लश्कर को अपने किले बानियाज से बाहर जमा कर लिया है। लिहाजा सुल्तान ने भी बड़ी तेजी के साथ अपने लश्कर के साथ बानियाज का रुख किया था। रास्ते में सुल्तान सैफुद्दीन तुर्निता और हुसामुद्दीन से मशवरा करते हुए बातिनों से जंग करने का तरीक़ाकार भी तय कर लिया था। बातिनों के किसी अचानक हमले से महफूज रहने के लिए सुल्तान रुकनुद्दीन ने अपने लश्कर के चारों तरफ मीलों दूर तक अपने जासूस फैला दिए थे, जिनकी इत्तलात के मुताबिक सुल्तान बड़े बेधड़क और बेखौफ होकर बानियास की तरफ बढ़ता चला गया था। यहाँ तक कि सुल्तान बानियास किले के बाहर बातिनों के सामने पहुंचकर पड़ाव कर लिया था। दूसरे रोज सुबह ही सुबह बातिनों ने अपने लश्कर में जंग के तबल बजा दिए थे, जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि वो सुल्तान के साथ जंग की इब्तिदा करना चाहते हैं। सुल्तान ने भी रास्ते में तयशुदा लाए अमल के मुताबिक अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर ली थी। हमले की इब्तिदा बातिनों की तरफ से हुई थी।